Let us see friends, let's start the chapter continuity. Okay, तो what is mean by continuity? तो जो भी फंक्शन का हम कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, तो what is mean by continuity देखो. So let take a function f of x and draw it. Okay, suppose एक पॉइंट ले रहा हूं मैं x is equals to a, x is equals to a पॉइंट ले रहा हूं. Suppose we put the value of x in f of a. Suppose it does not give any defined value, finite value, does not give any finite value like 2, 3, 4. Then it gives suppose finite, infinite, minus infinite in terms of this. So we cannot draw the graph at x is equals to a. So in this way the graph is not drawn by the anybody. Okay, so this point the graph is called the discontinuous. Okay, so in this way the graph is discontinuous at that point. Okay, so we continue at any point after that. So x is equals to a में वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि वो पॉइंट में एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहे, जैसे कि 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं आ रहे क्या फाइनाइट इनफाइनाइट वो जो वैल्यू आ रहे, तो वो पॉइंट में हम वो ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट ड्रॉ इन दिस टाइम, सो वी ड्रॉ आफ्टर टेक अनदर पॉइंट. ओके, अनदर पॉइंट लाइक a + 1, 4, 5 एटसेट्रा. तो दिस इज द कंटिन्यूस ऑफ ए फंक्शन. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस. ओके, तो व्हाट इज मीन बाय डिसकंटिन्यूअस? At any point x is equal to a, suppose the function is given that the function gives a undefined value like infinite and minus infinite, then we can't draw a graph of that function. So this point is called the discontinuous of a function. So what is mean by continuous? Suppose in x is equal to b, we draw the graph frequently. Okay, so we can say that this is a continuous at that point. Okay, तो समझ में आया? तो देखो डेफिनेशन में जाएंगे. A function f of x is said to be continuous at point x is equals to a if limit x tends to a minus f of x is equals to limit x tends to a plus then gives rise f of a. Okay, suppose लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस राइट हैंड लिमिट a प्लस में जब भी वो फंक्शन फाइनाइट वैल्यू f ऑफ a के साथ सेम होगा तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. मतलब x इज इक्वल्स टू a में वो फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. आगे जाएंगे. देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a. मतलब जो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो कौन सा कंडीशन में? तो फर्स्ट कंडीशन इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो f of x में x टेंड्स टू a, x को डालेंगे जब लिमिट चेक करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा. एग्जिस्ट का मतलब ये है कि वो फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा. ओके, तो it does not gives a finite value like 2, 3, 4, 5 etc. like real number. It gives infinite and minus infinite etc. Okay, if the function gives in x tends to a finite and infinite, then we say that the function is not discontinuous at that point. Okay, और भी लिख सकते हैं limit x tends to a negative a minus is not equals to limit x tends to a plus f of x. तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो सपोज वो दोनों इक्वल नहीं आएगा. ओके, तो देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. ओके, सो सपोज द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट गिव्स राइज 1, द राइट हैंड लिमिट गिव्स राइज -1. So we cannot say that this function is continuous. This function is discontinuous also. Okay. Then go for next point, 3 point. Suppose the function limit f of x left hand limit and right hand limit suppose not is equals to आ गया f of a के साथ, then we can say that the function is discontinuous at that point. Okay. Then the fourth point is
एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो उसका मीनिंग फर्स्ट का मीनिंग ज़्यादा तक सेम है। तो एक एग्जांपल ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। ओके, तो सपोज मैं वहाँ पर डालूंगा x इज इक्वल्स टू 2, देन इट गिव्स राइज x 2 minus 2 minus 2 that equals to 2 by 0 that equals to infinite. Okay, so this is not a finite value. So the n in x is equals to 2, the f of x does not gives a finite value, so does not exist. That means it does not exist at x is equals to 2. So we can't say that it is a continuous function. This is a discontinuous function. So in this way we find out continuous and discontinuous of a function. Okay, so first one is limit f of x does not exist, same. Then limit लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं होने से वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इन थर्ड वे वी से दैट एफ ऑफ ए के साथ इक्वल नहीं होगा। इन फोर्थ कंडीशन एफ ऑफ डज नॉट गिव्स ए फाइनाइट वैल्यू एट दैट पॉइंट। मतलब सपोज मैं टू के साथ कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा हूँ तो वो सपोज फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, it does not gives a finite value, then it is a discontinuous function at that point। जो पॉइंट में चेक कर रहा हूँ वो पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, सो उसके हिसाब से हम चैप्टर को आगे करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। मतलब कौन सा कंडीशन में, इन विच कंडीशन द फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस, इन विच कंडीशन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। तो जो चार्ट प्रॉब्लम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, वो कंडीशन को यूज करके हम ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। सो वो कंडीशन को सीखना जरूरी है। ओके, तो पहले देखो वो कंडीशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एट पॉजिटिव साइड। ओके, तो वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बट जिसको समझ में नहीं आ रहे तो उनके लिए बोल रहा हूँ थोड़ा। देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले वो जो लेफ्ट हैंड को कैसे लिख सकते हैं, LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, देन उसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में पुट करेंगे f ऑफ a माइनस h। ओके, तो वो बन जाएगा h टेंस टू 0 करने से a माइनस है ना, तो x के साथ पुट करेंगे a माइनस h। ओके, इन प्लेस ऑफ x वी कैन पुट a माइनस h। समझ में आया? तो उसका फॉर्मूला है। ओके, इन प्लेस ऑफ x वी पुट a माइनस h। ओके, इफ वी राइट h टेंस टू 0 देन इन प्लेस ऑफ x a minus h. Suppose it gives a finite value. Suppose it gives a finite value. Okay. Then we go to other right hand limit RHL. Also it gives rise limit h tends to 0 f of a plus h. वहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो वहाँ पर x के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं a plus h. Suppose is also give a finite value. Okay. तो वो दोनों इक्वल होने से हम बोल सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, तो सपोज इट गिव्स राइज 1 देन इट गिव्स राइज -1 नॉट इक्वल, देन वी कैनॉट से इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पॉइंट, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में था लिमिट कैलकुलेशन करने का तरीका है वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो 2-3 प्रॉब्लम करने से वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम करेंगे। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड 4 इफ x इज इक्वल्स टू 0। ओके, टेस्ट द कंटिन्यूअसी एट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल्स टू 0 में हम वो फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ओके, सपोज द इन एग्जाम द क्वेश्चन इज नॉट गिवन राइज test the continuity at x is equals to 0, then we found out the continuity of the function at that point in which the function value is given. Okay, suppose exam में x is equal to 0 में
बोला कि कंटिन्यूटी टेस्ट करो। ओके, तो कर देंगे। सपोज क्वेश्चन में दिया गया है कि वो x इज इक्वल 0 में suppose in exam the question is not given that in that point suppose in exam it will not given that test the continuity at that point, so we can test the continuity at that point in which the function value is given. Okay, तो वहाँ पर x is equals to 0 में the function value is given, so we can test at that point. Okay, तो this is the main point of in this type of problem. Okay, तो please note it down. तो प्रॉब्लम को करेंगे x is equals to not 0 में वो फंक्शन दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो x इज इक्वल टू 0 डालने से वो फंक्शन का वैल्यू आ जाता है 4. ओके, तो वी कैन टेस्ट कंटिन्यूस बाय द मेथड ऑफ LHL एंड RHL लिमिट. ओके, तो कैसे LHL RHL लिमिट करेंगे देखो. तो LHL ले जाऊंगा हमारा लिमिट x टेंस टू a माइनस, मैं पहले बोल चुका हूँ फॉर्मूला. LHL का लिमिट होता है x लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x. तो f ऑफ x को a माइनस लिमिट में चेक करेंगे. ओके, तो वहाँ पर x इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया 0, तो हम डाल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस. समझ में आया? तो x इज इक्वल टू 0 में हम चेक करेंगे f ऑफ x का कंटिन्यूटी किस तरह है. ओके, तो f ऑफ x का वैल्यू कैसे डालेंगे वो पहला जानना जरूरी है. ओके, तो सपोज दिया गया देखो x इज नॉट इज इक्वल टू 0. 0 का मीनिंग नहीं है, मतलब x नॉट इज इक्वल टू 0, तो इट में बी x ग्रेटर देन 0, इट में बी x लेस देन 0. समझ में आया कि नहीं? तो उसका वैल्यू 0 ना होने से जो भी पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा तो वो डालने से वो फंक्शन का वैल्यू उतना होता है. तो हम डाल सकते हैं 0 माइनस मतलब x लेस देन 0, तो वही फंक्शन डालेंगे. समझ में आया मेरी बात? तो मेरा बात समझ में आया कि नहीं? तो x लेस देन 0 मतलब वो फंक्शन हम डाल सकते हैं. तो 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. ओके, सो लेस देन 0 में वही डालेंगे, x ग्रेटर देन 0 में भी वही डालेंगे. ओके, तो हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू, इधर क्या करेंगे मैं पहले बोल चुका हूँ. नेक्स्ट लाइन में हमारा हो जाएगा h टेंस टू 0. ओके, तो हमारा हो जाएगा h टेंस टू 0. वो थोड़ा सॉल्व कर देंगे अच्छे से. देखो हम लिख सकते हैं इधर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x लिख सकते हैं. उसके बाद हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारा बन जाएगा 0 माइनस h. मैं फॉर्मूला बोल चुका हूँ. x टेंस टू a माइनस होने से सपोज मैं डालूंगा x टेंस टू 0, देन दिस फंक्शन इज बिकम्स a माइनस x, a माइनस h बन जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन राइट 0 माइनस h. हमारा फॉर्मूला था ना लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x. So in less than we can write limit h tends to 0 f of a minus h. वो हमारा फॉर्मूला बोल चुका हूँ. तो उसके हिसाब से h tends to 0 होने से x के प्लेस में हम 0 डाल सकें, तो इधर हमारा 0 बन जाएगा क्योंकि वो 0 पॉइंट में हमारा कंटिन्यूटी चेक करने बोले. ओके, तो इन दिस पे 0 माइनस इज इक्वल्स टू f of x, then we can put h tends to 0, then f of 0 minus h. That's we get 0 minus h is equals to f of minus h. समझ में आया? तो देखो आगे जाएंगे. तो लिमिट h टेंस टू 0 हमारा आ गया f ऑफ माइनस एच, मतलब वो दिस इज f ऑफ x, तो वही फंक्शन डालेंगे. पहले बोल चुका हूँ बिकॉज x लेस देन 0 में वो फंक्शन आता है. ओके, तो इन दिस वे वी कैन पुट, तो देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू गिवन दैट 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. ओके, तो दिस इज फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, बट मैं प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए बोल रहा हूँ. देखो तो x के प्लेस में हम डालेंगे f ऑफ माइनस एच. x के प्लेस में माइनस एच डालने से वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4 ऑफ माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच का स्क्वायर.
समझ में आया कि नहीं, x के प्लेस में माइनस एच डाल देंगे। तो इसके हिसाब से हमारा आ गया 1 माइनस कॉस 4 ऑफ माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच का स्क्वायर। समझ में आया? तो इसके हिसाब से मैं लिखा हूँ, प्लीज़ नोट इट। ओके, देन देखो आगे जाएंगे। दैट इम्प्लाई दैट इज इक्वल्स टू लिमिट हैश टेंड्स टू 0, वो हमारा आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस 4h। देखो जो भी फंक्शन का कॉस में माइनस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, वो इट इज ए इवन फंक्शन। तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा देख लीजिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो उसके हिसाब से हमारा बन जाएगा कॉस 4 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा कॉस 4x। ओके, देन माइनस एच का स्क्वायर बिकम्स एच स्क्वायर। ओके, अच्छा, देन देखो आगे जाएंगे। लिमिट हैश टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला डालेंगे। ओके, तो हमारा फॉर्मूला इससे है, इस तरह है, देखो 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया? तो 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वहाँ पर 2x होने से वो x होते हैं, तो 4h होने से क्या हो जाएगा, 2h बन जाएगा। ओके, समझ में आएगा नहीं? तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2h, 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइड बाई एच स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पर 2x होने से वहाँ हो जाता है x, तो वहाँ पर 4h होने से वो बन जाएगा 2h। ओके, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2h बाई। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट डाल सकते हैं, हमारा एक फॉर्मूला है। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, वो फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला, तो वो 4-5 तो ऐसे फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला यूज होगा मैं बोल दूंगा अभी। ओके, तो वो फॉर्मूला यूज करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो याद रखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, वो एक फॉर्मूला था हमारा। ओके, फर्स्ट ईयर में, तो लिमिट सॉल्व करने के लिए, तो उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी लिमिट का कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, तो वो बन सकता है h टेंड्स टू 0 देन इट इज साइन स्क्वायर 2h बाई एच स्क्वायर। ओके, तो देखो इधर वहाँ पर 2h है, वहाँ पर 2h, वहाँ पर h, तो हमको 2h नीचे क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर फॉर्मूला डाल सकते हैं कुछ इस तरह, उस तरह का फॉर्मूला हम वहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2h, वहाँ पर 2h क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट लाइन जाएंगे, तो 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं साइन 2h बाई h का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एच स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में बना दे। ओके, तो नेक्स्ट देखो, देन गो फॉर नेक्स्ट लाइन, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो वो बन गया हमारा साइन 2h डिवाइड बाई h, तो हम लिख सकते हैं साइन 2h डिवाइड बाई 2h करेंगे, तो 2h से एक मल्टीप्लाई करने से और एक डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो 1/2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो उसका होल स्क्वायर। ओके, देन उसके हिसाब से आगे जाएंगे। देखो तो 2 इंटू, देखो गो फॉर नेक्स्ट लाइन, 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बन जाएगा हमारा साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/1/4, तो वो नीचे आ जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, 1/1/4 मतलब बाहर आ जाएगा 4। ओके, देन इट गिव्स राइट 8 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर। ओके, तो साइन 2h बाई 2h का वैल्यू होता है साइन x बाई x का वैल्यू 1, तो हम डाल सकते हैं इसका टोटल वैल्यू 1 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 8। समझ में आया? तो दिस इज वैल्यू फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो वो फॉर्मूला डाल के हम उसको सॉल्व किए अभी। ओके, तो प्लीज़ नोट इन डाउन फ्रेंड्स।
नेक्स्ट देखो इन दिस वे इक्वेशंस ऑफ द RHL। तो RHL का वैल्यू क्या देखो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ RHL। तो a के प्लेस में हम डाल सकते हैं 0, क्योंकि हमारा 0 में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला था। ओके, उसके बाद देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 डालेंगे तो वो बन जाएगा 0 प्लस h। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो बन जाएगा f ऑफ h। तो हमारा फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो x ग्रेटर देन में भी वही फंक्शन डालना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में था x नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो वी टेक लिमिट h टेंड्स टू 0 देन गिव्स राइट f ऑफ x, we can put in value of x 1 minus cos 4h divided by h square। okay, तो that implies limit h tends to 0 1 minus cos 4h का वैल्यू होता है 2 sin square 2h divided by h square। okay, मैं अभी बोला था उसके हिसाब से 1 minus cos 4h का वैल्यू 2 sin square 2h by h square। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो we can write another step sin square 2h divided by इसे कर देंगे थोड़ा 2h एंड h का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो उसके हिसाब से आगे जाएंगे। देखो तो नेक्स्ट लाइन इन लिमिट h टेंड्स टू 0 तो बन जाएगा sin 2h डिवाइड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, मतलब वो 2 का स्क्वायर 4 तो 4 मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड किया, तो बाहर आने से वो 8 बन जाएगा। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h डिवाइड बाई 2h का होल स्क्वायर। ओके, तो उसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 किया, उसके हिसाब से 8। ओके, तो हमारा LHL वैल्यू आया था 8, देन RHL वैल्यू भी 8। सो LHL इज इक्वल्स टू RHL। सो लिमिट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0 f ऑफ x। ओके, क्वेश्चन में देखा ना f ऑफ x, तो f of x is continuous at x is equals to 0। तो in this way we check the continuous of a function। तो please note it down friends। Dear friends, then we take another example, check continuity of this function f of x is given by 2x plus 1 if x less than 1, 0 if x is equals to 0 and x square minus 1 if x is greater than 0। तो x लेस देन जो वैल्यू डालेंगे वो 2x plus 1 आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू 0 डालने से वो फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा, देन x इज इक्वल ग्रेटर देन डालने से वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो उसका कंटेंट चेक करेंगे। मैं पहले बोल चुका हूँ, तो वहाँ पर पॉइंट नहीं दिया। देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, तो हम चेक करेंगे 1 में। ओके, मैं पहले बोल चुका हूँ, जो पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू दिया है वो पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमारा आ गया कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 में। ओके, तो सॉरी दिस इज 1 बिकॉज क्वेश्चन दिया है 1 पॉइंट में हमको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो देखो कंटिन्यूटी कैसे करेंगे, सेम LHL ले जाएंगे RHL ले जाएंगे। तो LHL का क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1। सो वी टेक लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, समझ में आया, f ऑफ x डालेंगे। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो सपोज 1 माइनस मतलब 1 लेस देन, तो 1 के नीचे, तो 1 के नीचे जो भी नंबर आने से फंक्शन का वैल्यू हो जाता है 2x प्लस 1। समझ में आया कि नहीं, तो 1 का नीचे जो भी फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 1 हो जाता है। इसके लिए हमारा फंक्शन का वैल्यू वहाँ पर बन जाएगा x टेंड्स टू 1 माइनस, तो बन जाएगा 2x प्लस 1 बन जाएगा। समझ में आया, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, x नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो x नॉट इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0 हो जाता, बट वहां पर क्या दे ना x लेस देन 0, तो उसका मीनिंग है कि 1 के नीचे जो भी पॉइंट डालेंगे उसका वैल्यू 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस का मतलब ये है कि 1 का नीचे जो भी पॉइंट डाल सकते हैं हम, तो 1 के नीचे जो भी पॉइंट डालने से हम फंक्शन चेक करना पड़ेगा 2x प्लस 1 में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू इतना आ जाता है। ओके, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन दैट प्रॉब्लम। तो देखो, तो 1 माइनस में चेक करेंगे f ऑफ x को, तो हमारा बन जाएगा लिमिट हैश टेंड्स टू 0, तो दैट्स व्हाई इट गिव्स राइज 2 इंटू 0 माइनस h, सॉरी
1 माइनस एच प्लस 1, ओके, क्योंकि हम एच टेंस टू 0 डालने से हमारा फॉर्मूला 1 माइनस एच हो जाएगा, जैसे कि a माइनस एच होता है, ओके। तो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एच, तो x के प्लेस में हम डाल सकते हैं 1 माइनस एच, समझ में आया। तो उसको लेकर आगे जाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस एक्स गिव्स राइज 2 माइनस 2h प्लस 1, ओके। तो देन विल गो फॉर नेक्स्ट लाइन, h टेंस टू 0, 2 माइनस 2h, तो 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, 3 माइनस 2h बन जाएगा। देन सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं, वहाँ पर नहीं करेगा कुछ, तो डायरेक्ट हम डाल देंगे h का वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 0, दैट इक्वल्स टू 3। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 3, ओके। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। देन देखो राइट हैंड लिमिट में चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगा 1 प्लस आने से एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे। तो देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x का ऊपर, तो 1 के ऊपर जो भी नंबर 1 प्लस में होगा, तो 1 प्लस में जो भी नंबर डालेंगे वो फंक्शन का वैल्यू बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फंक्शन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के ऊपर जो भी नंबर है हम उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन उसको लेकर आगे जाएंगे, तो बन जाएगा देखो लिमिट h टेंस टू 0, देन x के प्लेस में डाल सकते हैं 1 प्लस एच। मैं पहले बोल चुका हूँ एफ ऑफ a माइनस a प्लस आने से वो नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच, तो x के प्लेस में डालेंगे a प्लस एच, तो वहाँ पर a मतलब 1, तो 1 के प्लेस डालेंगे 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, समझ में आया। देन लिमिट h टेंस टू 0, तो वो फंक्शन को सॉल्व करेंगे, वो बन जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, a प्लस b का होल स्क्वायर डाला हूँ, देन माइनस 1, ओके। देन कंटिन्यू, देन लिमिट h टेंस टू 0, तो वी गेट 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो वी गेट h स्क्वायर प्लस 2h, ओके। तो वहाँ पर पॉइंट डालो कुछ, तो डालने से बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, दैट इक्वल्स टू 0। तो RHL का वैल्यू हमारा आ गया 0। तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, क्योंकि वहाँ पर 3 आया था, वहाँ पर 0 आ गया। सो इट एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 में एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ओके। तो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, वी टेक अनदर एग्जांपल, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए देन ए एक्स इज इक्वल्स टू ए, ओके। तो x इज इक्वल्स टू ए में फंक्शन का वैल्यू आता है a, तो वी चेक द कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट विच इज गिवन बाय द फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू दिया गया है x इज इक्वल टू ए में, तो x इज इक्वल टू ए में फंक्शन का वैल्यू दिया गया a, तो हम a पॉइंट में हम चेक करेंगे कंटिन्यूस, ओके। तो कंटिन्यूस कैसे करेंगे, देखो एट x इज इक्वल्स टू a में चेक करेंगे, तो हमारा आ गया LHL। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ओके। तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस में क्या डालेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो सपोज एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ए, देन इट मे बी एक्स ग्रेटर देन ए, देन इट मे बी एक्स लेस देन ए, समझ में आएगा नहीं। तो एक्स लेस देन में वही फंक्शन डालेंगे, एक्स ग्रेटर देन ए में भी वही फंक्शन डालेंगे। तो एक्स लेस देन ए मतलब ए माइनस ए का नीचे जितना भी पॉइंट्स है वहाँ पर फंक्शन वही होगा, उसका वैल्यू वही होगा। तो उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं लिमिट हैज tends to 0, then it will be f of a minus h, then we can put h tends to 0, it becomes f of x, मतलब वहाँ पर वो पॉइंट डालना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं। तो डालेंगे देखो इधर f of x इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए हमारा, तो हमारा आ गया a माइनस एच, मतलब क्या होगा a माइनस एच का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस एच माइनस ए, ओके। तो वो डालेंगे, तो हमारा बन जाएगा देखो a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस एच माइनस एक्स का प्लेस में डालेंगे, एक्स का प्लेस में डालेंगे a माइनस एक्स। तो इधर पुट कर रहा हूँ तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इधर लिख दो a माइनस
देन हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ओके, तो x माइनस एच टेंस टू 0 हो गया, तो x के प्लेस में डालेंगे a माइनस एच डाल देंगे, तो बन जाएगा a माइनस एच का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस एच माइनस ए। ओके, तो वी गो फॉर अनदर लाइन, लिमिट h टेंस टू 0, तो थोड़ा सॉल्व कर दो, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई वहाँ पर a कैंसल, then it gives rise minus h। okay, then a square minus h भी कट जाएगा, then limit h tends to 0, we can take common h, then it becomes h minus 2a divided by minus h, तो h भी कट जाएगा, then we can write, तो नीचे माइनस है ना, वो सॉल्व करने से बन जाएगा 2a माइनस h, तो h के प्लेस में 0 डालो, तो 2a माइनस 0 दैट इक्वल्स टू 2a, तो LHL का वैल्यू हमारा आ गया 2a। ओके, तो उसके हिसाब से हम RHS भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, तो प्लीज नोट इट डाउन। देन देखो RHL कैसे सॉल्व करेंगे, RHL मतलब वो a प्लस बन जाएगा, देन f ऑफ x, देन वो भी a प्लस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, तो वहाँ पर a प्लस एच मतलब राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच बन जाएगा, उसके हिसाब से वहाँ पर a प्लस एच माइनस ए डाल सकते हैं। ओके, तो माइनस ए, देन a इधर भी कट जाएगा, देन इट गिव्स राइज a प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस ए स्क्वायर, देन इट गिव्स राइज a स्क्वायर कॉमन हो गया, इट बिकम्स h स्क्वायर प्लस 2h, तो h कॉमन निकाल दो, बन गया h प्लस 2h, देन वो नीचे माइनस नहीं है इधर। ओके, तो माइनस भी कट जाएगा, h प्लस 2a डिवाइड बाई h कट जाएगा, देन इधर बचेगा 2a प्लस h, तो 2a प्लस h आने से हो जाएगा हमारा 2a प्लस 0 दैट इक्वल्स टू 2a, तो LHL भी आया था 2a, देन RHL भी आ गया 2a, तो हमारा हो गया LHL इज इक्वल्स टू RHL, देन f of x is continuous at x is equals to a, तो x is equal to a में फंक्शन f of x, the given function f of x is a continuous। okay, so please note it down।